Okay, let's start today's session. Okay, so yesterday we have seen the inheritance. Okay, so different types of inheritance, and we were trying to do one small program as well using the inheritance, where we have we have seen we have created two different classes. Okay, so this account class is a parent class, and saving account and the current account, these are the generally child classes. So, and in our main class, okay, this is a test main class where we are using those particular classes here. Okay, and yes, so we were trying to do one particular small application. So today we have just implemented these two functionality only, the create account and second is a display account. So if I'm doing any particular, okay, let's start with this one. Okay, so now basically firstly what I'm trying to do, I'm trying to create a account. Okay, so let's say I'm creating the savings account, enter account number. So this will be the save one, balance let's say 6,000, interest rate 5.5. Okay, and this particularly will create a one account. Okay, then let's go let's create one another account as well. So here it's a saving, enter account number, it's save 2, enter balance 4,000. Okay, 5.5. And now let's say I want to display the account, right? So I'm pressing the entering the choice 2, display account. Now I want to enter the number, say 1. Okay, so it has displayed this account number is this and balance. Okay, so again if I want to display the second account, I can print out save 2. Okay, so it will particularly display this account number save 2 and balance is 4,000. Okay, later this again this application और this multiple choices जो है वो हमें every time दिख जाएंगे, क्योंकि हम जब तक exit नहीं करते हमारा particular application. If I am pressing 5, okay, for 5 I think I haven't added the choice here for 5 exit. Okay, and this choice is 4. Okay, so let's say 4, incorrect choice, and it will be execute this exit our program. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है हमने कल देखा था. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विथ सेकंड ओप्स प्रिंसिपल. ठीक है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल इज अ एब्स्ट्रैक्शन. So generally abstraction, it means that hiding some essential data or showing only essential functionality and hiding the implementation. Okay, इसका मतलब क्या होगा कि इन जनरल मान लो हम कोई भी चीज करते हैं, लेट्स से हमारी कार है या हमारा लैपटॉप है. ओके, इफ आई एम ओपनिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, मैं माउस से जाकर उस पर डबल क्लिक पे आइकन करता हूँ एंड इट जस्ट ओपन्स आवर एप्लीकेशन. ठीक है, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मुझे पता नहीं है. सिमिलरली कार के लिए भी मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ या की लगाता हूँ तो मेरा इंजन जो है वो स्टार्ट होता है. सो हाउ दैट पर्टिकुलर इंजन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुझे पता नहीं होता. Similar way, while doing Java code, okay, or writing our application, we can achieve the abstraction as well. तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी शो कर दूंगा एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका अप्रोप्रिएट जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से देख लूँ, ठीक है, मैंने एक ये अकाउंट सर्विस जो है वो क्लास बनाया है. ठीक है, एंड दिस अकाउंट सर्विस क्लास, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये क्रिएट अकाउंट जो है ये हुआ इम्प्लीमेंटेशन हुआ. नाउ लेट्स से मुझे जो है जनरली यहाँ पे जब बैंक टेस्ट में मैं कर रहा हूँ, बैंक टेस्ट में आई डोंट वांट टू शो और दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, मैं सिर्फ जो भी है मेथड है उसको कॉल करना चाहता हूँ, राइट. सो दैट टाइम फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ इंटरफेसेस. ठीक है, सो जनरली इंटरफेस में क्या रहेगा,
interface, within interface we are just showing the functionality, we are not writing any implementation there. Okay, so let's say I am creating one interface, account. Okay, now I have account service. Actually मेरे पास अकाउंट सर्विस क्लास भी है, ठीक है। इस अकाउंट सर्विस को आई एम रिमेनिंग द IMPL। जनरली जब भी हम कोई इंटरफेस को ये करते हैं उसको IMPL दे देते, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे भी मुझे अकाउंट सर्विस। ओके, नाउ कीप दिस एज इट इज, ठीक है। मैं इसको एक कर लेता हूँ, इंटरफेस अकाउंट सर्विस, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस हुआ। सो जनरली इंटरफेस में कैसे लिखूंगा, जैसे सिमिलरली आई एम राइटिंग द क्लास, सिमिलर वे आई विल बी राइटिंग द इंटरफेस, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस कीवर्ड यूज कर लूंगा वहां पे आगे जाके इंटरफेस का नाम। नाउ अकाउंट सर्विस में मुझे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सो लेट्स से पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ये एक सर्विस हो गई। सेकेंड, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। ये दो जो है मेरी दो अकाउंट में ये दो फंक्शनैलिटी रहेंगी। अब देखो जब हम क्लास में लिखते हैं तो क्लास में हम कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं तो दैट टाइम यू आर राइटिंग लाइक दिस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो करली ब्रेसेस में हम ऑलवेज गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन। अब इंटरफेस में वी कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मेथड्स सिर्फ जो भी मेथड्स रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब हम मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन देते हैं, उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, ठीक है। एंड ये जो है पब्लिक, अगर मैं पब्लिक देता भी हूँ नहीं भी देता हूँ तो भी चलेगा, मेरे जो भी मेथड्स रहेंगे इंटरफेस में ऑल दोज मेथड्स विल बी ऑलवेज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, ठीक है। तो आपके जो भी मेथड्स रहेंगे वो पब्लिक रहेंगे। आप जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो दोज वेरिएबल्स विल बी ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। अगर इंटरफेस में आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो दैट वेरिएबल एज वेल इट विल बी always public static final. So let's say this var, I am creating this int var, ठीक है। अब मैं इसको अगर करता हूं तो ये always final रहेगा एंड आई हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू यहाँ पे, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये अगर मैं लिखता हूं तो भी चलेगा, नहीं लिखता हूं तो भी इट विल बी always public static final, ठीक है। ये वाला रहेगा। तो अब देखो ये जो int है राइट, अब इसको मैंने कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, स्टैटिक भी नहीं दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स से यहाँ पे अकाउंट सर्विस है, ठीक है। अकाउंट सर्विस, ओके, इसको मैं जो है नल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अकाउंट सर्विस में और इंटरफेस का जो है वी कैन नॉट प्रोवाइड द और वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, ठीक है। ये इसके लिए व्हाई वी कैंट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, क्योंकि अगर मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता एंड फिर और ये क्रिएट अकाउंट को कॉल देता तो ऑब्वियसली मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन तो दिया नहीं है, तो कंपाइलर को प्रॉब्लम आ जाएगा, समझेगा नहीं कहाँ का। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका हम देते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेगा, लेट्स से दिस इज द वन क्लास राइट, मैं बोलता हूँ इम्प्लीमेंट्स अकाउंट सर्विस, ठीक है। अब अगर मैं कोई क्लास जो है किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ, सी इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड क्लास जो है एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो उसी में आता है इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ, वो जो जो भी इंटरफेस था उसमें जो भी फंक्शनैलिटीज है वो फंक्शनैलिटी मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्प्लीमेंट्स। सो अगर मुझे अकाउंट में जो भी इम्प्लीमेंट अकाउंट सर्विस में अब मेरी डिस्प्ले भी मेथड है, ठीक है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स ये डिस्प्ले अकाउंट डाल देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे जो भी है मतलब क्रिएट अकाउंट एंड डिस्प्ले अकाउंट जो है उन मेथड का मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिया है। ये हुआ हमारा अकाउंट सर्विस IMPL का। अब बैंक टेस्ट में जब मैं ये कर दूंगा, ठीक है,
ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करूंगा द ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर का जो है कॉल दे दूंगा, ना कि दिस अकाउंट सर्विस का। ठीक है, बिकॉज अकाउंट सर्विस इज इंटरफेस और उसमें उसका ये नहीं रहता, कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं रहता। कंस्ट्रक्टर नहीं रहता मतलब फिर हम उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सर्विस डॉट मेरा int था where राइट। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आई कैन एक्सेस द वेरिएबल जो भी सर्विस में है, अकाउंट सर्विस में, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने यहाँ पे उसको कुछ पब्लिक स्टैटिक वगैरह भी नहीं दिया, राइट। इवन दो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट बाय यूजिंग द इंटरफेस नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट उसको ऐसा ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस में हम जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट रहेंगे स्टैटिक। ओके, एंड ऑब्वियसली पब्लिक। ओके, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। फाइनल कीवर्ड हमने देखा था, फाइनल का मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट असाइन और चेंज द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू असाइन है, इंटरफेस में ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू असाइन थी, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो वो नहीं करने देगा। ठीक है, बिकॉज दिस अकाउंट सर्विस वेरिएबल इज अ फाइनल वन। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ये जो है अकाउंट सर्विस में मैं मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकता, दोज विल बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किनको बोलते हैं, जो मेथड्स हम जनरली ये नहीं क्रिएट करते, जिन मेथड्स का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, दोज विल बी द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हुआ इंटरफेस। अब यहाँ पे फिर हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करें, जनरली हम बस यही यूज करें। अब देखो कंपाइलेशन के वक्त वो एज ए इंटरफेस को ही रेफर करता है। ठीक है, तो सर्विस क्रिएट अकाउंट ऐसे रहेगा। मान लो आपने खुद का एक सॉफ्टवेयर कर लिया और दूसरों को वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दे रहे हो आप, तब क्या कर सकते हो, आप बस इंटरफेस दे दो तो दूसरे सिर्फ इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, रन टाइम पे उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन वो पास करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेथड्स है उनको कॉल दे देंगे, या खुद के जो भी मेथड्स है उनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एंड दैट इज अचीव्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस बाय यूजिंग इंटरफेस ओके, इसको हम अकाउंट सर्विस जो है ये हमने अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला मेरा होगा करंट अकाउंट वाला, राइट। सो मैं करंट अकाउंट को भी इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ। इंटरफेस, ओ सॉरी, करंट अकाउंट नहीं रहेगा, ये अकाउंट सर्विस को ही कर रहा है ना मैं। ये अकाउंट सर्विस। ओके, लाइकवाइज, ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ फिर हमारा इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस जो है हमने देखा था कि इंटरफेस हम बोलते हैं कि इंटर बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन एक्सटेंड द और वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी क्लास को एक इंटरफेस से इंप्लीमेंट करता हूँ, आई कैन इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस हियर। ठीक है, सो आगे जाके जावा में हमारे पास एक कंपैरेटर करके एक ये रहता है, कंपेरेबल कंपैरेटर, ये इंटरफेसेस है। ठीक है, तो कंपेरेबल में कंपेयर नाम की एक मेथड रहती है, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मतलब यहाँ पे हम अगर किसी क्लास से अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो हम वी कैन इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस देयर। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, जब जैसे हमने ये इसके लिए नॉर्मल अगर मेरा क्लास है, अगर मैं मल्टीपल क्लास एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे डायमंड प्रॉब्लम आता है, राइट। डायमंड प्रॉब्लम कल हमने डिस्कस किया था। अब अगर इंटरफेसेस है एंड लेट से अकाउंट सर्विस एंड कंपेरेबल बोथ हैज द सेम मेथड, ठीक है, फिर भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहीं पे दे रहे हैं, राइट। दोनों इंटरफेस में बस उसका डिक्लेरेशन है। सो दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो बाय यूजिंग इंटरफेसेस
अलाउड है, ठीक है, वो हम यूज कर देते हैं। सो दिस इज द इंटरफेस। ओके, नाउ लेट्स से अब मेरा क्या है कि ये अकाउंट सर्विस IMPL है, राइट। मैं उसको सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL रख सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा जो है सेविंग अकाउंट की डिफरेंट प्रोसेस है एंड अकाउंट ओपन करने की, एंड क्रिएट अकाउंट की डिफरेंट प्रोसेस है, सॉरी करंट अकाउंट की अगर डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL बोल सकता हूँ और एक क्लास कर लूंगा करंट अकाउंट सर्विस IMPL, जिसमें फिर दोनों मेथड तो सेम ही रहेंगे, क्रिएट अकाउंट और ये वाला। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, ये वाला हुआ मेरा सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL। कहाँ पे error है? ये ठीक है, ये हटा देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स से क्या है कि मेरा जो भी है, मैं मतलब सेविंग अकाउंट की जो डिस्प्ले अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट है, इनकी जो मेथड है वो डिफरेंट है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक क्लास क्रिएट कर लूंगा, जिसको बोल दूंगा मैं करंट अकाउंट सर्विस IMPL, ठीक है, एंड इसको मैं बोल दूंगा इम्प्लीमेंट्स जो है मेरा अकाउंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं जो है मेरी डिफरेंट ये जो है अकाउंट्स की वगैरह डिटेल जो है ना, वो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ लाइकवाइज, ठीक है। ये हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है। तो ऐसे मतलब अगर क्रिएट अकाउंट जो है आपको अगर स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देने हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज। ओके, अब इसका और एक सिंपल ये कैसे ले सकते हैं एग्जांपल कि ठीक है, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप व्हीकल जो है ना व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो अब जनरली व्हीकल्स में कौन कौन से फंक्शनैलिटीज आ जाएंगे, स्टार्ट इंजन हो गया, स्टॉप इंजन हुआ, ठीक है, माइलेज वगैरह हुआ, अदर देन, ठीक है, ऐसे। अब आके जाके आपके व्हीकल्स में आते हैं साइकिल, ओके, मतलब सॉरी टू व्हीलर आ जाएगी, ओके, और बाइक बोल सकते हैं आप, बाइक हो गई, एंड हो गई आपकी फोर व्हीलर, ठीक है, बाइक या कार ले लो। तो बाइक का जो इंजन स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो अलग रहेगा, ओके, एंड कार का इंजन स्टार्ट करने का प्रोसेस अलग रहेगा, बट दोनों में वो फंक्शनैलिटीज कॉमन है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द जनरली इंटरफेसेस, राइट। सो इंटरफेस में हम बेसिकली जितने भी फंक्शनैलिटीज हमें लगने वाली है वो हम सिर्फ डिक्लेयर करके रखते हैं, लेटर उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो गए उसमें हर एक को अलग अलग जो है उसकी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन चला जाएगा। तो मतलब अगर मैं बाइक का कर लेता हूँ, बाइक का स्टार्ट इंजन का इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा एंड कार का स्टार्ट इंजन का इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा। सिमिलर वे जैसे यहाँ पे सेविंग अकाउंट का क्रिएट अकाउंट का इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा और करंट अकाउंट का क्रिएट अकाउंट का इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे वी आर यूजिंग द इंटरफेसेस, ठीक है, एंड इसी से हम जो है एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो अचीव करते हैं। सो अब जनरली इंटरफेस को इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि इंटरफेसेस आर कॉल्ड एज 100% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको प्योर एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ लेट्स से अब सर्टेन रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे सम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सारे बाकी के सारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिक्स रहेंगे। ओके, मतलब लेट्स से अब ये मेरा अकाउंट सर्विस है, राइट। ये इस अकाउंट सर्विस जो है मेरा डिस्प्ले अकाउंट जो है ये डिटेल सबके लिए सेम ही रहेगा, मतलब सेविंग अकाउंट रहे या करंट अकाउंट रहे दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ फिर इसमें, या फिर मुझे सर्टेन जो भी मेथड्स है और फंक्शंस है उनका इम्प्लीमेंटेशन पता है, सेम ही रहेगा, उसी जगह पे मुझे करना है। ओके, सो दैट टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल क्रिएटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होगा, सम ऑफ द मेथड विल बी कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है। अब कॉन्क्रीट मेथड का मतलब क्या, ओके, लेट्स से कॉन्क्रीट मेथड का मतलब क्या हुआ कि जिन मेथड को हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं
दोज विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, उनको हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी हुई, जिनका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। सो अगर मैं किसी क्लास में सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता हूँ, ओके लेट्स से पब्लिक वॉइड, ओके नाउ लेट्स से मेरा जो है डिपॉजिट डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी हो सकती है करंट अकाउंट के लिए डिफरेंट है, सेविंग अकाउंट के लिए डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज लेट्स से सेविंग अकाउंट में मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ, करंट अकाउंट में नहीं करता। ठीक है, तो अब जब एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस ये जो क्लास है, एंड इसमें मुझे जो बैलेंस जो है और विड्रॉ के लिए सेम ही रहेगा, दोनों का कंसिडर कर लो। जो विड्रॉ की फंक्शनैलिटी है, विड्रॉ की फंक्शनैलिटी दोनों करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों के लिए सेम ही रहेगी। ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट वी विल बी डूइंग, एक मेथड मेरी नॉर्मल रहेगी, ओके जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, और फिर उसको कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं। एक मेथड मेरी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, ओके। बट अगर मैं क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता हूँ तो मुझे कंपलसरी है उस मेथड को आई हैव टू प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, एंड अगर मैं किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड प्रोवाइड करता हूँ एक आध क्लास में, तो अगेन आई हैव टू प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऑन द क्लास। ठीक है, सो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है, तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होगा, इंटरफेस विल कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, ये जावा 7 तक है। जावा 8 से जावा 8 में हम इंटरफेसेस में स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड जो है वो कर सकते हैं उसमें बेसिकली क्रिएट। लेकिन तब तक जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम नॉर्मल जो है इंस्टेंस मेथड, ठीक है, बट लेकिन इंटरफेसेस में इंस्टेंस मेथड नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक, अभी जावा 8 में भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें स्टैटिक मेथड्स होंगे एंड देयर इज अनदर डिफॉल्ट मेथड, वो क्रिएट कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वी कैन क्रिएट जो है इंस्टेंस मेथड एज वेल एज हमारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हुआ जनरली हमारा पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो मान लो अगर मुझे ये जो अकाउंट सेविंग अकाउंट सर्विस आईएमपी लिए, तो अब मुझे विड्रॉ एंड जो है विड्रॉ एंड इसकी फंक्शनैलिटी देनी है, राइट, डिपॉजिट एंड विड्रॉ की फंक्शनैलिटी। सो दैट टाइम व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ एक्सटेंड। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो क्लास अगर रहता है तो आई हैव टू यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड, करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस। अगर मैं अब देखो यहाँ पे, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उनको इम्प्लीमेंट करना ही हुई। ठीक है, सो आई हैव टू इम्प्लीमेंट द डिपॉजिट मेथड हियर। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद ठीक है, एंड ऑब्वियसली विड्रॉ जो है, विड्रॉ दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सो दैट्स वाई विड्रॉ हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बैंक टेस्ट में, अभी के लिए मैंने कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है, ठीक है, बट लेट्स से केस 3, हाँ केस 3, यहाँ पे आई एम अगेन क्रिएटिंग अकाउंट सर्विस, सर्विस 2 इक्वल टू न्यू अकाउंट सर्विस। अब इसमें, अब देखो मैं सेविंग अकाउंट या हो या करंट अकाउंट, उसके बेस पे मैं जो है विड्रॉ बैलेंस और डिपॉजिट बैलेंस उनको कॉल दे सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं सेविंग अकाउंट का बोल देता हूँ सर्विस 2 डॉट, मैं बोल रहा था विड्रॉ, ये कौन सा मैंने दिया है, करंट अकाउंट दिया है, सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट आईएमपी में मेरे, ओके डिपॉजिट एंड ये है ना ऑलरेडी। ओके, अब प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे अकाउंट सर्विस दिया है, उसके कारण अकाउंट सर्विस इंटरफेस में वो तो डिफाइन नहीं है डिपॉजिट एंड विड्रॉ, दैट्स वाई मेरे यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ जो है ना वो नहीं आ रहे, तो मुझे यहाँ पे फिर सेविंग अकाउंट सर्विस आईएमपी देना पड़ेगा। ओके ऐसे, नाउ आई कैन प्रोवाइड द डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट भी दे सकता हूँ एंड ओके विड्रॉ भी जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है, केस 3 के लिए डिपॉजिट ब्रेक जो है वो लगाना है मुझे।
एंड केस 4 यहाँ पे मेरा आ जाएगा सर्विस 1। ओके, विड्रॉ, ठीक है, ऐसे। so this is the way, so generally this is the abstract class and the interfaces, ठीक है। अब abstract class कब हम यूज करेंगे? so we know the certain functionality which has to implementation, which we can provide the implementation, and some of the functionalities we don't know about the implementation, or implementation can be varied, ठीक है। so that time we will be using the abstract class, ठीक है। and interface, मुझे सारे के सारे जो भी फंक्शनलिटीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करना है, सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द इंटरफेस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ? ओके, पॉलीमॉर्फिज्म ने, ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? ऑब्वियसली क्लास है, तो वो क्या कर सकता है? एक्सटेंड ओनली वन क्लास, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो भी दूसरे किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। दूसरे अपने नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, या फिर दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। इंटरफेस जो है, इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। सो जनरली ये इंटरफेस है, ठीक है। अगर मेरा एक इंटरफेस है, वो दूसरे इंटरफेस को कभी इंप्लीमेंट कर नहीं पाएगा, करेक्ट है। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन का मतलब, इंप्लीमेंट्स अगर मैं कीवर्ड लगाता हूं तो उसका मतलब यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, राइट। बट इंटरफेस में हम इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इंटरफेस कैन एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरे जावा के जो भी है इंटरफेसेस, वो आप इंटरफेसेस उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरफेस कैन एक्सटेंड, एंड जब हम एक्सटेंड करते हैं इंटरफेस के लिए, अब इंटरफेस में हम तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, एंड ऑब्वियसली जो भी इंटरफेसेस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सो वी कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। अगर इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग अनदर इंटरफेसेस, सो इट कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। बट दैट इज नॉट केस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड करना चाहता है तो ओनली वन क्लास को ये एक्सटेंड करेगा। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड फ्रॉम अ क्लास और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। पहले इसमें बोल रहे थे कि जो है हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है दूसरे किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे एक ही सिंगल क्लास को वो एक्सटेंड कर सकता है। सो कोई है क्या जावा में? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट करके एक क्लास है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी सिर्फ एक ही क्लास उसको एक्सटेंड कर सकता है। मतलब सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL में अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो बस मुझे वही क्लास एक्सटेंड कर सकता है, राइट। इसके अलावा मैं एक ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास जो है वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरफेस कैन एक्सटेंड ओनली फ्रॉम एन इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस जो है इंटरफेस से ही एक्सटेंड हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है। कॉन्क्रीट मेथड मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, ठीक है। जब भी हम क्लास यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है मैंडेटरी है, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंडेटरी है टू डिक्लेयर मेथड एज एन एब्स्ट्रैक्ट। अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करनी है तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देना मैंडेटरी है। बट इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देना मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस, ये मेथड मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेंशन नहीं किया, बट स्टिल दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड लगा भी सकता हूँ, नहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज द ऑप्शनल थिंग। उसके बाद अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड जो है प्रोटेक्टेड पब्लिक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरा, ये मेरी प्रोटेक्टेड हो सकती है, ठीक है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट भी हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट नहीं हो सकती। प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती?
बिकॉज अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ तो ये इसी क्लास में एक्सेसिबल रहेगी, एंड मैंने इसका डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो जो भी क्लास इसको इस क्लास को एक्सटेंड करेगा उसमें तो ये एक्सेसिबल होनी चाहिए ना, और प्राइवेट वेरिएबल जो है प्राइवेट मेथड से वो नीचे एक्सेसिबल नहीं रहते। सो दैट्स वाई प्राइवेट मेथड्स, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हैं हम, दोस कैन नॉट बी प्राइवेट, ठीक है, बट पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट जो है वो हो सकती है, ठीक है ये। बट हाँ, जो आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दोस कैन बी प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट हो जाएगी ऐसे। ये वन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, ये यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे कॉल दिया है, तो इसके मैं अगर उसको प्राइवेट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एरर दिखेगा, बिकॉज आउटसाइड द क्लास में उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है ये यहाँ पे इसको मैं पब्लिक रख लेता हूँ, ओके। बट इंटरफेस में जो है, इंटरफेस में आपके बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। सो आई कैन नॉट प्रोवाइड द प्रोटेक्टेड ईयर, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जो है आपकी जो भी मेथड्स है वो पब्लिक रहेगी। अब वेरिएबल जो है, जैसे बोला था इंटरफेस में सिर्फ स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल रहेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वही वेरिएबल रहेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मतलब मैं इसको प्राइवेट नहीं कर सकता, प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकता, राइट। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एनी एनी वेरिएबल, बेसिकली हम जो बोल सकते हैं, मतलब जिसमें और एक चीज, ये जो है स्टैटिक वेरिएबल से, राइट, ये स्टैटिक वेरिएबल है, हमने कीवर्ड नहीं दिया, बट दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक बोथ वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करना है तो मुझे स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ता है, ओके। एंड अगर मुझे नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना है, इंस्टेंस वेरिएबल, सो दैट आल्सो आई कैन क्रिएट लाइकवाइज, ठीक है। तो ये मेरा हुआ इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे। सो आई कैन क्रिएट ए इंस्टेंस वेरिएबल्स इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जिसको मैं प्राइवेट बोल सकता हूँ, प्रोटेक्टेड बोल सकता हूँ, एनीथिंग, एंड दोज विल बी नॉट द फाइनल एज वेल, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस में फिर जो भी हमारे वेरिएबल्स है, ये एक डिफरेंस हुआ, ठीक है। इसके अलावा और एक डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। Okay, I don't think we have covered the constructor functional yet, right? But constructor जो है, basically constructor का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है constructors, ये हो गए हमारे constructor, right? So this is called as a constructor, ठीक है। जो भी जिसके भी आगे आपके ओपनिंग एंड कर ये ब्रेसेस आते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स आते हैं ना, वो हो गए आपके मेथड्स, ठीक है। बट अगर आपके क्लास नेम के सिमिलर एक कोई मेथड रहती है तो दैट विल बी द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बट इंटरफेसेस कैन नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही आ जाएगा, अकाउंट सर्विस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, both we cannot create a objects, but in interface we cannot have the constructor, in abstract class we can have a constructor, ठीक है। ठीक है, एनीवेज कंस्ट्रक्टर जो है हमारा अभी पेंडिंग है, हम कल जो है कंस्ट्रक्टर्स देख लेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विद द हमारा हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली दिस इज द, ठीक है। तो अब आज जो है हम बेसिक ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ जो है ना वो भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब अब देखो, ओके, वी हैव डन द डिफरेंट चेंजेस। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था उसमें तो मेरा सिर्फ सेविंग अकाउंट सर्विस सैंपल था, जिसमें मैं अकाउंट जो है वो एज अ स्टैटिक वेरिएबल लेना वो यूज करता था, कर रहा था, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, लेट्स मूव दिस टू दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फिर मुझे हर जगह पे, मतलब सेविंग अकाउंट में भी वो ये जो है वेरिएबल्स वो एक्सेस करने मिलेंगे, एंड करंट अकाउंट में भी ये अकाउंट का जो एरे है वो एक्सेस आता रहेगा, ठीक है। लाइकवाइज तो मतलब यहाँ पे जो हो रहा था एंड सिमिलर में, ठीक है। अब मुझे क्या है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ जो है दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी लिखनी है, राइट। सो लेट्स से आई एम राइटिंग द डिपॉजिट हियर। अब डिपॉजिट का मतलब क्या हो, मेरा जो भी बैलेंस है, ठीक है,
और ऑब्वियसली डिपॉजिट में आई हैव टू प्रोवाइड द अमाउंट, मैं कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ, राइट। सो इंट, लेट्स से इंट की जगह पे मैं डबल देता हूँ, डबल अमाउंट, कितने अमाउंट में ये कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली ये और राइट के लिए एरर देगा, बिकॉज इन आवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास केस में ये डबल जो है ना वो नहीं है, राइट। वो वाली मेथड कुछ भी पैरामीटर्स नहीं ले रही। तो एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस, यहाँ पे इसको मैं डिपॉजिट को बोल देता हूँ डबल अमाउंट, ठीक है, ये वाला हुआ। अब यहाँ पे जो है एरर जाना चाहिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट में मुझे कितनी अमाउंट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ओके। और अकाउंट जनरली कौन से अकाउंट में, उस अकाउंट में भी मुझे करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो फिर से एंटर अकाउंट नंबर, ओके। स्कैनर है क्या ऊपर, लेट्स क्रिएट अ स्कैनर। ओके, ये सारी चीजें डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग, नहीं बट डिपॉजिट में, ठीक है, डिपॉजिट में ही डालते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये डबल अमाउंट हम यूजर से ही ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। एंड एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस को यहाँ से मैं ये वाला हटा देता हूँ। सो हाँ, डिपॉजिट, ठीक है, एंटर अकाउंट नंबर हुआ। अब मेरा जो है स्ट्रिंग अकाउंट नंबर इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप से मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। एंड बिफोर दैट गेट अमाउंट भी ले लेते हैं हम, अमाउंट इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। एंड इसको बोल देते हैं ओके, लाइकवाइज। अब जो भी है मेरा इंट आई इक्वल टू 0 ग्रेटर अकाउंट्स, राइट, अकाउंट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरे मुझे क्या है, जो अकाउंट नंबर आया है उस अकाउंट के लिए ये अकाउंट में से ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई विल गेट वन अकाउंट इक्वल टू अकाउंट्स, यहाँ पे आई, ठीक है। एंड लेट्स पुट, मैं यहाँ पे नल भी दे देता हूँ, ठीक है। इफ अकाउंट्स ऑफ नल, ऐसे, ओके। तो अब मेरा ये नहीं है, एंड इफ दिस अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर डॉट इक्वल इग्नोर केस, आपने जो अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया है वो वाला अकाउंट नंबर अगर सेम है, राइट, अगर सेम है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल, मुझे पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो लेना पड़ेगा उस अकाउंट का, राइट। सो आई एम गेटिंग डबल एग्जिस्टिंग बैलेंस इक्वल टू अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। अब मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है, एग्जिस्टिंग बैलेंस प्लस मेरा हो जाएगा ये जो आपने जो अमाउंट किया वो मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल फाइनल जो है फाइनल बैलेंस इक्वल टू दिस वन, ठीक है। एंड अब ये जो फाइनल बैलेंस है वो मैं सेट कर सकता हूँ इसी अकाउंट को, राइट। सो अकाउंट डॉट सेट बैलेंस फाइनल बैलेंस, राइट। एंड ऑब्वियसली फिर से ये अकाउंट मुझे उस अकाउंट्स को, मतलब मेरा जहां जिस भी इंडेक्स पे था
वहां पे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। सो आई विल बी अगेन पुटिंग दिस अकाउंट। डन है। एंड ठीक है, मेरा ये हो गया था, तो आई कैन डायरेक्टली रिटर्न, राइट। एंड इफ अकाउंट नंबर ही नहीं मिलता है, इनकरेक्ट डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनकरेक्ट अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड। ठीक है, लाइकवाइज ये वाली चीज जो है ये हो गई। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट, हमारा जो है एग्जिस्टिंग का जो है डिपॉजिट जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो टू द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली डिपॉजिट को कॉल दे ही रहे हैं हम, और रन। अब मुझे पहले ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो आई एम क्रिएटिंग द सेविंग अकाउंट, जिसमें सेव 1 बैलेंस में डाल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए 2000। ठीक है, इंटर इंटरेस्ट रेट 5.5। अब ये इंटरेस्ट रेट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो कि ये इसके हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, अब मुझे 3 में डिपॉजिट बैलेंस करना है। सो एंटर अकाउंट नंबर, मेरा जो एग्जिस्टिंग है सेव 1, ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अमाउंट, ठीक है, एंटर अमाउंट में बोल रहा हूँ 2000 था ना, 1000 कर लेता हूँ। ओके, डन हुआ। नाउ वी कैन डिस्प्ले द अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, सो डिस्प्ले के लिए 2 प्रेस कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर सेव 1। अब देखो मेरा जो अकाउंट डिटेल्स है, दैट शुड बी द बैलेंस शुड बी द 3000। ठीक है, ऐसे हुआ। लेट्स से मैं इनकरेक्ट डिपॉजिट नंबर, इनकरेक्ट अकाउंट नंबर डालता हूँ। 3 है अकाउंट, अब मेरे पास 2 अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं है, मैं ये डाल रहा हूँ, एंटर अमाउंट डाल रहा हूँ 1000। ठीक है, इनकरेक्ट अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड। ओके, लेट्स क्रिएट वन मोर अकाउंट। सो मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, सेविंग्स ही कर लेता हूँ, बिकॉज वी हैव रिटर्न एवरीथिंग इन द सेविंग्स अकाउंट सर्विस IMPL। ठीक है, करंट अकाउंट सर्विस में अभी कुछ भी नहीं लिखा है। सो सेव टू, अब इसका बैलेंस मैं डाल रहा हूँ 2000 अगेन। ठीक है, इंटरेस्ट 5.5। ठीक है, नाउ डिस्प्ले। ठीक है, फिर ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट ही कर लेते हैं। डिस्प्ले अकाउंट में सेव टू। ठीक है, ये अकाउंट नंबर हुआ और उसका बैलेंस हुआ। ओके, लेट्स से डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं सेव टू में 3, अकाउंट नंबर सेव टू, एंटर अमाउंट, इसमें मैं 1500 जो है वो डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया सेविंग अकाउंट में। जनरली यहाँ पे हम सक्सेस मैसेज वगैरह भी डाल सकते हैं कि सक्सेसफुली डिपॉजिटेड, सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएटेड, ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो वो भी डाल सकते हैं। बट ठीक है, आप आप अगर ये कर रहे हो साइड बाय साइड अपने एंड पे, तो आप यहाँ पे डाल देना। ओके, एंड वन मोर थिंग आई हैव मिस्ड हियर, यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना, बट ठीक है, वो हम फोर्थ वाले जो है विड्रॉ बैलेंस का अभी तो हम देख ही नहीं रहे। ओके, सो लाइकवाइज जो भी है, मतलब आप ऐसे जनरली ये कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो एग्जिट भी हो जा रहा है। अब मेरा मैं 5 कर रहा हूँ, एग्जिट हो रहा है, बिकॉज डिफॉल्ट के बाद मैंने, ये डिफॉल्ट है ना, इसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो वो इनकरेक्ट ऑलवेज लेता ही रहेगा केस में, यहाँ पे भी ब्रेक। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सो दिस वाज द एप्लीकेशन। तो आप ये एप्लीकेशन जो है इजी है एंड सिंपल है। ठीक है, बस आपको इंटरफेसेस वगैरह क्रिएट करने हैं। ठीक है, अकाउंट सर्विसेज, सेविंग अकाउंट इंटरफेसेस, एंड उसमें जो जो मेथड्स हैं सिंपल सा आप लिख लेना, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसके हिसाब से। एंड देखो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस मतलब कलेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया, बस जो है एरेज जो है वो एरे हम यूज कर रहे हैं, एंड दैट अकाउंट्स एरे इज इन अ सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट में नहीं था, तो इसके लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस में डाल दिया, ताकि सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को भी वो मिल सके। राइट, इसके कारण। एंड फिर अब विड्रॉ जो है, विड्रॉ मान लो दोनों का सेम ही मुझे ये रखना है, तो विड्रॉ से हम ये कर सकते हैं। अब विड्रॉ में प्रॉब्लम क्या है, विड्रॉ में हमें बैलेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विड्रॉ करते हो, ठीक है, सेम ही कर सकते हैं, मतलब जो हमने यहाँ पे डिपॉजिट में जैसे हमने फंक्शनैलिटीज दी थी,
इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। बस मुझे माइनस करना है। एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, विड्रॉ बोल रहा हूँ मैं, एंटर अकाउंट बोल रहा हूँ, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, ऐसे बोल सकता हूँ इसको, विड्रॉ, ठीक है। अब मेरे जो भी अमाउंट आ जाएगी उसमें, और मैं अकाउंट्स को जो है एक्सेस कर रहा हूँ। अब जो भी अकाउंट आ जाएगा मेरा, और जिनका अकाउंट नंबर और यूजर ने जो भी अकाउंट एंटर किया था वो अगर इक्वल्स होता है, तो यहाँ से मैं उसका एग्जिस्टिंग बैलेंस लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना है, मतलब एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस में अमाउंट कर लूंगा, राइट। एंड इसमें और एक चेक लगा सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे जो है मैं बोल सकता हूँ कि इफ मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन मेरा गेट बैलेंस ना, कौन सा, विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। मतलब आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए कंपेयर टू द दिस वन, आपके अमाउंट से, जो भी आप विड्रॉ अमाउंट डाल रहे हो उससे ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, एल्स मैं सिस आउट कर दूंगा इनसफिशिएंट बैलेंस। 1 minute, सॉरी। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, सो लाइक फिर हम यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस जो है वो डाल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली मुझे जो फॉर लूप है वो बंद करना है, तो मैं उसको रिटर्न लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स टेस्ट दिस एज वेल। एंड यहाँ पे फिर समझ में नहीं आता तो हम यहाँ पे जो है मैसेज डाल सकते हैं कि विड्रॉ सक्सेस डन, विड्रॉ डन सक्सेसफुली। ओके, लाइक इसको आप सिंपली एज अ एटीएम का जो एप्लीकेशन रहता है ना, एज अ उससे भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। मतलब एटीएम में अगर आप इनिशियली आप जो भी कार्ड वगैरह डालते हो, तो उसके बाद जो जो आपके ये आते हैं ऑप्शंस आते हैं, उसके हिसाब से आप जो है मेन्यू चॉइस वगैरह कर सकते हो लाइक वाइज, ठीक है। बट एटीएम में एडवांस है कि कार्ड डालते हो तो अकाउंट की डिटेल्स इनिशियली उसको जाते हैं, तो आप डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द कार्ड, आप इनिशियली डाल सकते हो, लॉगिन हुआ उसके बाद एंटर अकाउंट डिटेल्स, एंड आपका लॉगिन का जो पिन वगैरह है वो डालकर उसके हिसाब से आप जो है एटीएम का एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। इट्स सिंपल, ठीक है। अब लेट्स से हमारी जो है विड्रॉ की जो है विड्रॉ भी फंक्शनैलिटी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, एवरी टाइम आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन, राइट। और मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो मेरा जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा था वो सारा का सारा डेटा हमारा खत्म हो जा रहा है, राइट। तो इसी कारण फिर हम जो है डेटाबेस यूज करते हैं, ताकि अगर मैं एवरी टाइम अगर मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ, मैं अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो वो अकाउंट का जो भी डिटेल्स है डेटाबेस में ऑलरेडी सेव रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ तो मुझे फिर से अकाउंट वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एंड उसका जो भी बैलेंस वगैरह है वो सारा का सारा वहाँ पे रहेगा, ये स्टोर रहेगा। तो दैट्स वाई डेटाबेस जो है हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अ, अगर हमें टाइम मिलता है तो एक सेशन में हम देख लेंगे, जिसमें हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं, ठीक है। सो कल, ओके, वी डू हैव, दिस इज आवर 8 डे, सो एंड 12 डे तक ना, सो आई कीप दिस पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग थोड़ा सा जल्दी ले लूंगा, एक ही लेक्चर में ये मैं खत्म कर लूंगा, एनकैप्सुलेशन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग,
उसके बाद एक लेक्चर में हम इनकैप्स एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेंगे एंड एक लेक्चर में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देख लेंगे। सो एट द एंड आपका जो ये वाला एप्लीकेशन है ना, आप विद डेटाबेस कनेक्टिविटी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। वो बेसिकली जेडीबीसी रहेगा। एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट या वी कैन टेक इट आउट। उसका कुछ ये नहीं। सेविंग्स, ओके, सेविंग किया, एंटर अकाउंट नंबर, सेव वन। ठीक है। अब मैं जो है बैलेंस मेरा 5000 डाल देता हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इसकी जरूरत नहीं भी, ठीक है, ये नहीं वैसे, ठीक है, 5000। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 में डाल रहा हूँ। मेरा नंबर हो जाएगा सेविंग अकाउंट 1, अमाउंट जो है। ठीक है। अब मैं मेरा ओके, मेरा इनिशियली है बैलेंस 5000 है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 6000। इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, डिस्प्ले हुआ, राइट। लेट्स से मैं पहले अभी डिपॉजिट कर लेता हूँ उसमें 3। डिपॉजिट के लिए फिर से अमाउंट जो है सेव 1। अब मैंने 3000 जो है वो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, ये डिपॉजिट हुआ। अब मुझे विड्रॉ करना है। नाउ अकाउंट नंबर अगेन सेव 1। ठीक है। अमाउंट विड्रॉ 6000 करता हूँ। अब मेरा जो है 5000 प्लस 3 8000 जो है बैलेंस होना चाहिए था। 6000 विड्रॉ डन सक्सेसफुली। ठीक है। अब मैं डिस्प्ले अकाउंट जो है डिटेल्स उसकी चेक कर सकता हूँ। सो डिस्प्ले अकाउंट सेव 1। डिस्प्ले अकाउंट की जगह पे आप चेक बैलेंस भी लिख सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, सेव 1। ठीक है। अब देखो 2000 जो है आपका बैलेंस यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज द बेसिकली आप मतलब यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा जो है बैंक एप्लीकेशन जो है, आप इसे एटीएम, आप इसको एटीएम का एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। आई एम एग्जिटिंग 5। ठीक है, एग्जिट हो गया। लाइकवाइज तो ऐसे जो है जनरली आप एक पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन है आप ऐसे कर सकते हो। Okay, attendance link I have shared. So anyone has any particular questions, you can you can provide in the Q&A session, so we can reply. We do have the 5 minutes left for attendance. This is the link. ठीक है, ये अटेंडेंस की लिंक हो गया एंड आंसर में so everybody mark the attendance if you haven't marked it yet, and ask any particular questions if you have any doubts or anything related to this one, and try to do this particular at your home, so instead of seeing the code and all those things. ठीक है। सो अगर आप आपके एंड से भी ये कर रहे हो, इट्स अ बेसिक स्विच केस और इफ फॉर लूप जो है वो हम लगाकर ये वाला जनरली कर रहे हैं। तो अगर और आपको जो है फंक्शनलिटी तो समझ में आ ही गई है, तो इसके हिसाब से आप खुद भी घर पे ट्राई कर लेना कि आपसे ये पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन। Okay. I missed last 3 class. Anyway, to watch this. Yes, we have recorded this session. Actually, we didn't get time to upload these sessions on the YouTube. But anyways, we will be uploading these sessions on the YouTube. So don't worry, we will upload this on the YouTube. So where we can get it, this particular application. ठीक है, जिसमें हमने ट्राई किया है कि हमने थ्योरी पे फोकस नहीं किया है ज़्यादा, बट हाँ जितने भी हम एटलीस्ट बेसिक एप्लीकेशन और बेसिक प्रोग्राम जो है वो लिख सके, राइट। इसमें भी एडवांस जो है एडवांस जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे यूज वगैरह नहीं किया है, बस एरेज जो है एरेज हम यहाँ पे यूज करें। सो ठीक है, ये वाला तो इसके बाद एनी मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग। ओके, ठीक है, देन वी कैन मीट टुमारो। थैंक यू फॉर एवरीवन joining. Last time link, okay, for attendance link, oh, I am sharing this link again.
Okay, guys, then. Thank you. Thank you, Yuri, for your time. Bye.